Assalamu alaikum, dear students of class 8. This is Abbas Haidari, your maths teacher. First of all, many congratulations and a very warm welcome to class 8. Dear students of class 8, the course content has been shared with you in your WhatsApp group. According to the course content, the first chapter is chapter number 2. Unit number 2, real and complex numbers. So the first lecture is about chapter number 2, lecture number 1, chapter number 2, real and complex numbers. So in this video we will discuss some general topics about the real and complex numbers. Now the first topic is set of numbers. The first set is set of natural numbers, which is denoted by n and which starts from 1 and so on. पहला जो हमारा सेट है बेटा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और उस नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है. नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे और ये कंटिन्यू रहेंगे, स्टॉप नहीं होंगे अप टू सो ऑन. 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. डॉट्स मीन्स अप टू सो ऑन कि ये इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे. बेटा याद रखें कि नेचुरल नंबर के सेट में फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर शामिल नहीं है. द सेकेंड सेट इज सेट ऑफ होल नंबर्स. Set of whole numbers is denoted by W and it starts from 0. So set of whole number जो है वो W से डिनोट होता है और 0 से ये स्टार्ट होगा. इसके एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. द थर्ड सेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स is denoted by capital Z. सेट ऑफ इंटीजर्स जो है बेटा वो Z से डिनोट होता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. 0 से जब आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो इसमें होगा 1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 means up to so on. And the fourth set is the set of rational numbers. Set of rational numbers. Now we will discuss that what do you mean by rational number? What is rational number? A rational number of the form, a number of the form P by Q is called a rational number. I repeat, a number of the form P by Q. वो नंबर जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे रेशनल नंबर कहेंगे. रेशनल नंबर इसको इसलिए कहते हैं कि ये रेशो फॉर्म में मौजूद होता है. P बाई Q न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर. सो दिस इज कॉल्ड द रेशनल नंबर. और रेशनल नंबर को अगर हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कहेंगे द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. अच्छा, डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q where P and Q belongs to set of integers. P और Q कौन से नंबर्स होंगे वो इन नंबर्स को हम इंटीजर के सेट से ही उठाएंगे. एंड Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0. Q जो है डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया तो वो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा. इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं द फिफ्थ नंबर सेट इज सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स. सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स. जिस तरह मैंने बेटा आपसे पहले डिस्कस किया कि वो नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहेंगे.
Now, the definition of set of irrational number is the set of those numbers, the set of those numbers which are not rational. अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि रेशनल नहीं है तो वो डेफिनेटली इरेशनल कहलाता है, जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. सो आई रिपीट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर? द सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स which are not rational number and which cannot be written in the form P by Q. So these numbers are called irrational number. Now we will define the set of real numbers. Set of real numbers. So what is the set of real numbers? Set of real numbers the set of real number is the union of rational and irrational numbers is called set of a real number. Set of real numbers. Set of real number is the union of rational and irrational numbers. इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह लिख सकते हैं कि the set of real number is equal to set of rational number, which is denoted by capital Q, union the set of irrational number, which is denoted by Q dash. So here is a definition of set of real numbers. The definition is the union of rational and irrational numbers is called set of रियल नंबर्स. अब बेटा हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ हाउ टू रिकॉग्नाइज अ रेशनल नंबर. How to recognize a rational number? हमारे पास एक नंबर अगर आपके पास गिवन हो तो आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि आया ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है. सो द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर कोई ऐसा नंबर है, ऐसा डेसिमल नंबर है कि वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 3/8. 3/8. सो इसको हम सॉल्व करते हैं. 3 डिवाइड बाय 8. पॉइंट लगाएं, 0 पर भी पॉइंट आएगा. 8 3s are 24. यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 6. एक और 0 लगाएं, इसको आप नीचे उतारें तो ये बन जाएगा 60. 8 7s are 56. Now what is the remainder? The remainder is 4. Again आप 0 लगाएं
और उसको आप नीचे उतारें, सो ये बन जाएगा 40, 8 5s are 40 एंड द रिमाइंडर इज 0। सो 3/8 को हम लिख सकते हैं कि 3/8 इज इक्वल टू 0.375 की फॉर्म में। तो ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो कि टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, देयर आर ओनली 3 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट। तो ये टर्मिनेट चूंकि हो गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 3/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल hence it is a rational number। तो बेटा याद रखें कि ऐसे नंबर्स के जो टर्मिनेट हो जाएं, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अच्छा, सेकंड पहचान इसकी क्या है? सेकेंडली ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक ऐसे डेसिमल्स कि जो टर्मिनेट तो ना हो रहे हों, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, एक डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो। द एग्जाम्पल इज 2/15। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2/15 को 2 डिवाइड बाय 15, पॉइंट लगाएंगे 0, 0.15 1s are 15, 5 इज द रिमाइंडर, 0 लगाएं, इसको आप नीचे उतार दें, 15 3s are 45 आएगा, और यहाँ से आपके पास रिमाइंडर 5, 0 लगाएं, नीचे उतारें 50, अगेन ये 3 पे होगा, 15 3s are 45, अगेन रिमाइंडर 5। सो ये 3 कंटिन्यू रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग, 3 टर्मिनेट नहीं हो रहा, 3 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, जिस तरह फर्स्ट नंबर जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसमें पॉइंट के बाद नंबर्स टर्मिनेट हो गए, सही है, डिवीजन कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन एक ख़ास नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/15 इज इक्वल टू 0.1, 3 के ऊपर इस तरह बार लगाएं। सो अ नंबर which is not terminating but repeating is also called a rational number. So 2/15 is called a rational number। ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर? अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स की रिकग्निशन हमने कैसी करनी है, इर्रेशनल नंबर को हमने कैसे रिकॉग्नाइज करना है। सो हाउ टू रिकॉग्नाइज an irrational number? How to recognize an irrational number? अगर कोई डेसिमल नंबर ऐसा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग
and non-repeating. अगर कोई ऐसा नंबर है कि आपके पास वो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, और इसके साथ साथ पॉइंट के बाद कोई ख़ास डिजिट अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा, विच इज़ कॉल्ड द नॉन रिपीटिंग, तो उस नंबर को हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 7. जब आप 7 का स्क्वायर रूट बेटा फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.645751 डॉट 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 अप टू सो ऑन. सो पॉइंट के बाद ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कोई स्पेसिफिक डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 7 को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज एन इर्रेशनल नंबर. ये एक इर्रेशनल नंबर है. अच्छा, एट द लास्ट एक नोट मैं आपके सामने बेटा लिख रहा हूं. द स्क्वायर रूट ऑफ perfect squares, the square root of perfect square is a rational number. अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आपके पास है, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 4. सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज अ रेशनल नंबर. इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसी तरह आप आगे जाते जाएं तो ये सारे रेशनल नंबर होंगे. सिमिलरली अगर आप परफेक्ट क्यूब, 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब का आप क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो वो भी रेशनल नंबर ही होगा. इससे 2 आएगा विच इज़ अ रेशनल नंबर. सो हम क्या कह सकते हैं कि द क्यूब रूट ऑफ 8 is a rational number, is a rational number. Now अगर हम किसी परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर रूट करते हैं सो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज एन इर्रेशनल number. So that was about the general discussion about chapter number 2. In the next lesson we will discuss exercise 1.1. Thank you very much.